षष्ठाध्यायी जगन्माता यस्य चित्तात् समुत्थिता वेदानामुपकाराय तस्मै पाणिनये नमः। नमो नमः। मेरा नाम तनिष्का शर्मा है। मैं पुणे से हूँ और मैं पिछले 2 साल से 16 मार्च 2024 से पौष्पी प्रक्रिया से व्याकरण पढ़ रही हूँ। पिछले 2 सालों में मेरा यह अनुभव रहा है कि पौष्पी प्रक्रिया से सरल और उच्चतम विधि पाणिनीय व्याकरण पढ़ने की और दूसरी कोई हो ही नहीं सकती, और यही पाणिनीय सम्मत विधि भी। नमो नमः। मेरा नाम पार्थ विश्वकर्मा है। मैं पुणे से हूँ। 16 मार्च 2024 में जो माताजी की कक्षा प्रारंभ हुई, उस कक्षा के माध्यम से मैंने पाणिनीय पौष्पी प्रक्रिया में प्रवेश किया। प्रणाम, मैं स्नेहा विश्वकर्मा। 1 सितंबर 2024 से जानवी जी की जो कक्षा प्रारंभ हुई है, उस कक्षा के माध्यम से मैंने पाणिनी पौष्पी प्रक्रिया में प्रवेश किया है। प्रक्रिया सीखते समय मेरा यह अनुभव रहा है कि नवीन संस्कृत न जानने वाले व्यक्ति भी इस प्रक्रिया को सरलता से सीख सकते। नमो नमः। मैं श्रुत विश्वकर्मा हूँ, पुणे से हूँ। मम्मा पाठ भैया के साथ संस्कृत पढ़ रहा हूँ। नमो नमः। नमो नमः। सर्वेभ्यो नमस्कारः। मेरा नाम वेदा देसिकन। मैं माताजी के क्लास में पिछले 4 साल से पढ़ रही हूँ। भिन्न भिन्न सहज बोध के किताब प्रथा 1, 2, 3, 4, 5, 6 करके सब किताबों का अध्ययन हुआ। अभी मैं समाज की कक्षा में हूँ। अनिल जी से पढ़ रही हूँ। मुझे माताजी का ये शिक्षण पद्धति बहुत ही पसंद है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि क्रम से जा रहे हैं। और जहां तक सूत्र की बात है, सूत्रों के विषय में बहुत घबराहट होता था शुरू में, परंतु अब ऐसा नहीं लगता है कि सब सूत्रों का कोरिलेशन समझ आता है। और हर प्रकरण में, मतलब किस प्रकरण में कहाँ ये उपयोग होता है, ये सब माताजी के अष्टाध्यायी के बुक से बहुत अच्छी तरह से समझ आता है। Namaste, I'm Punita Palakurthi from Boston, USA. I've been studying Sanskrit for quite some time, but recently I came across the message that Paniniya Sansthan is actually holding classes for people interested in Paniniya grammar. So naturally I was very curious. I wanted to find out what this Paniniya grammar is and how it is taught. With a lot of hesitation and timidity, I came and joined the classes. And but as soon as I joined the classes and Mataji started teaching us, I got deeply interested and started reading the books and trying to understand the subject matter. I always thought Sanskrit to be like a very complex subject, especially grammar, because you have to derive the words. There are no fixed words. Words are derived based on how you want to use them. So I know I used to understand, how do you do that? How do you remember all those things? How do you know these things? It was very daunting kind of an experience for me. But since I started attending these classes and getting introduced to Paushpi Prakriya, I find it yes, you have to put in a lot of work and understand, but this is how you have to learn, because Paushpi Prakriya has simplified the process of derivation of the words. And very logical, very like a step-by-step process, so that it's easy for anybody to understand. And yes, we have to work hard to remember things and keep on working, but the process is simplified with the Paushpi Prakriya, and that's fascinated me completely. And I have become like this greatest admirer of Mataji Pushpa Dikshit ji.
and I know she has millions of students like me. But the Saraswati and Shakti together is the first time I'm seeing in Mataji. Mataji is Saraswati and Shakti together for me. I mean, I cannot, I get so inspired when I see her talking, when I see her teaching us. And she has trained her students, some of the students, her senior students, specially trained, specially chosen to come and give us classes. They study with us, the teachers, and everybody has such humility. I'm completely taken over by their humility in teaching. And thank you so much. I can't thank Paniniya Sansthan enough for this opportunity. And I can't thank Mataji, Namo Namaha Mataji, and all my teachers who are teaching me. This is such a great, I consider myself very fortunate to have got this opportunity to study with you under Mataji's direction. And I look forward to knowing more about Sanskrit, about grammar, about our culture, and continue to have this lifelong journey of learning and enriching myself. Thank you. Cannot thank you enough. Namo Namo. प्रणाम। मेरा नाम अपर्णा शर्मा है। मैं चेन्नई निवासी हूँ। मुझे बताया गया था कि संस्कृत भाषा सम्यक रूप से सीखने के लिए 15 से 20 साल लगेंगे, परंतु माताजी की प्रक्रिया के द्वारा मैंने यह जाना कि संस्कृत व्याकरण सीखना न केवल सरल है परंतु साध्य भी है। वैसे ही माताजी से मैंने अपने भारत देश के प्रति, अपनी सांस्कृतिक धरोहर और अपनी संस्कृत भाषा पर गौरवान्वित होना भी सीखा है। धन्यवाद। अहं सेतुरामः पाण्डुरङ्गी। अहं कर्णाटकदेशात् आगतः। सम्प्रति अमेरिकादेशस्य कैलिफोर्निया राज्ये निवसामि। मम भाग्येन मया माताजेः समीपे 4 वर्षाणि यावत् संस्कृतव्याकरणम् अधीतम्। भाषायाः विषयेषु माताजेः प्रावीण्यं, तस्याः शिक्षणपद्धतिश्च अतीविष्टः स्तः। सा संस्कृतभाषायाः प्रसाराय भारतीयसंस्कृतेः परम्परायाश्च संरक्षणाय पूर्णमनसा समर्पिता। सा सर्वेषां आदर्शरूपेण तिष्ठति। मम भाग्यं महत् यत् मम माताजीं प्रति साक्षात् संपर्कः जातः। परम पूज्य माताजी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ये गौतम है, ये अर्जुन है, और ये हमारी माँ डॉक्टर रजनी प्रधान। हम मुंबई में रहते हैं। भगवान पाणिनि जी की अवतार परम पूज्य माताजी ने अपना पूरा जीवन लगाकर जिस पौष्पिक प्रक्रिया को प्रकाशित किया है, उसे विश्व को समर्पित करने के लिए हार्दिक बधाइयां। सन 2017 से हम परम पूज्य माताजी के शिष्य हैं। पौष्पिक प्रक्रिया का प्रकाश विश्व भर में फैले, ऐसी ईश्वर के चरणों में प्रार्थना। नमस्ते। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं टीकानाथ अधिकारी, अभी मैं नेपाल में हूँ। नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय का उप प्राध्यापक याज्ञवल्क्य लक्ष्मी नारायण विद्यापीठ में अध्यापनरत हूँ। मैं स्वयं माताजी का शिष्य रहा हूँ। पुष्पा दीक्षित माताजी के साथ में जाकर के बिलासपुर में जब मैंने अध्ययन किया तो सुना था बहुत समय। मैंने जब यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था तो माताजी की पुस्तक के विषय में, माताजी के विषय में मैंने सुना। एक बार मैंने काशी में माताजी का दर्शन भी किया था, तो मैंने माताजी से बात हुई थी। उस समय ऐसा लगा कि इतने उम्र के बाद भी इतने जोश से और इतने सटीक बात करती हैं और पूरा प्रमाण रख करके अष्टाध्यायी में इस तरह से यहाँ से ये दृष्टि, मुझे वो बिल्कुल मैं चौंक गया था। उसके बाद जब मेरे पास समय रहा तो मैं स्वयं माताजी से बात करके वहीं बिलासपुर में जाकर के अध्ययन किया। बहुत समय रहा, माताजी से बहुत प्रेम करके माताजी ने मुझे अध्यापन कराया। मैं अध्ययन किया माताजी से। तो जब मैं थोड़ा बहुत सीखने सिखाने लगा साथियों को, विद्यार्थियों को, तो मुझे बहुत अच्छा लगा और ऐसा लगा कि मैं बहुत सरल तरीके से इसको अध्ययन कर रहा हूँ, समझ रहा हूँ इस चीज़ को। तो इसलिए माताजी की पौष्पिक प्रक्रिया हम व्याकरण, विशेषतः संस्कृत व्याकरण पढ़ने, पाणिनीय संस्कृत व्याकरण पढ़ने वालों के लिए, समझने के लिए, दीक्षित भट्टोजी दीक्षित की पुस्तक को हमने अध्ययन किया। उसके बाद पुष्पा दीक्षित माताजी के द्वारा जो प्रक्रिया बनाई गई उसके हमने अध्ययन किया। और जब मैं पढ़ाता हूँ कोई भी पुस्तक
तो माता जी की इस प्रक्रिया को जैसे समझाता हूँ तो बहुत आसान हो जाता है पढ़ने वालों के लिए भी, और मुझे भी बहुत संतुष्टि मिलती है। इसलिए माता जी से मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। माता जी ने हम लोगों को यह प्रक्रिया दिखाई और ये बात दिखाई। स्वयं भगवती पराम्बा सरस्वती माता ही पुष्पा दीक्षित माता जी के रूप में आकर के यह प्रक्रिया हमारे सामने रख दिया है। इसलिए माता जी के प्रति हम लोग सभी आभार व्यक्त करते हैं। ओम नमः पाणिने। प्रणाम माता जी। मैं माधुरी तामस्कर, मैं दुर्ग से हूँ। मुझे 1996 से माता जी के सानिध्य का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ है। माता जी द्वारा रचित अष्टाध्यायी सहज बोध ने हम सभी के लिए अष्टाध्यायी जैसे गूढ़ विषय को अत्यंत सरल और सुगम बना दिया है। इस ग्रंथ के नाम में ही इसका संपूर्ण सार निहित है, सहजता से बोध कराने वाला। माता जी द्वारा रचित अष्टाध्यायी सहज बोध का प्रत्येक शब्द सहजता से समझ में आ जाता है। छोटे बच्चों से लेकर वृद्ध जनों तक सभी इसे सहजता से और सरलता से समझ सकते हैं। आज तक किसी ने भी अष्टाध्यायी को इतनी सरलता से और स्पष्टता से प्रस्तुत नहीं किया है। पहले जो मार्ग अत्यंत कठिन और जटिल प्रतीत होता था, माता जी ने हमारे लिए उसे अत्यंत सुगम बना दिया है। अब अष्टाध्यायी में प्रवेश करना न केवल सरल है, बल्कि उसमें कहीं भी भटकाव महसूस नहीं होता। मुझे ऐसे प्रतीत होता है मानो माता जी स्वयं एक ज्ञानरूपी कल्पवृक्ष है और अष्टाध्यायी सहज बोध उस कल्पवृक्ष का एक दिव्य फल है। जो भी इस कल्पवृक्ष की शरण में आता है वह ज्ञानरूपी गंगा में स्नान करके शुद्ध हो जाता है। ऐसा लगता है मानो भगवान पाणिनि स्वयं माता जी के रूप में अवतरित हुए हैं। यह हमारा परम सौभाग्य है कि हमें साक्षात माता जी से अष्टाध्यायी को समझने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। जिस प्रकार आकाश में सूर्य अपना दैदीप्यमान तेज समस्त विश्व में प्रकाशित करता है, उसी प्रकार अष्टाध्यायी सहज बोध समस्त विश्व को अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से प्रकाशित करे। नमो नमः। परम पूज्य माता जी को प्रणाम। पाणिनीय शोध संस्थान में समर्पित सभी संस्कृत आचार्यों और भारतीय देश में जो भी आचार्य है, सभी आचार्यों को मेरा सादर प्रणाम। मैं राजेंद्र कुमार राजगुड़े, अहिल्यानगर, महाराष्ट्र। मैं 1.5 साल से पौष्पी प्रक्रिया से अष्टाध्यायी का अध्ययन कर रहा हूँ। ये अध्ययन करते हुए पहली चीज़ ये घटित हुई कि मेरा जो डर था संस्कृत के बारे में, कंठस्थ करो फिर ये करो, वो डर चला गया। तो ये प्रक्रिया माताजी ने बहुत सुलभ बनाई है। अभी तो मुझे पूरा संस्कृत का ज्ञान नहीं है, लेकिन अभी तक जो भी सीखा है उससे मैं ये आत्मविश्वास मुझे आया है कि अभी मैं संस्कृत को पूरी तरह से सीख सकता हूँ। इसीलिए पुनः मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ। नमो नमः। नमो नमः। प्रणाम। मेरा नाम नीता है। मैं मुंबई में रहती हूँ और आदरणीय माताजी पुष्पा दीक्षित पाणिनीय शोध संस्थान द्वारा प्रचलित ऑनलाइन कक्षा से 2021 से जुड़ गई हूँ। संस्कृत व्याकरण का अध्ययन कर रही हूँ। वास्तविक रूप में मैं केमिस्ट्री की, रसायन शास्त्र की शिक्षिका हूँ। महाराष्ट्र के संत साहित्य का अभ्यासक भी हूँ, कीर्तनकार भी हूँ। मगर संस्कृत व्याकरण की बात करें तो पहले से ही दूर रहना पसंद करती थी। मेरे सौभाग्य से मैं 2021 में पाणिनीय पौष्पी प्रक्रिया से जुड़ गई और धीरे धीरे ऐसा लगने लगा कि मैं भी संस्कृत व्याकरण पढ़ सकती हूँ। हमारे आदरणीय अनिल दादीज महोदय, हमारी जाह्नवी टीवा मेरी मार्गदर्शक रही और इनके सहारे धीरे धीरे संस्कृत में रुचि बढ़ने लगी। संस्कृत व्याकरण के प्रति रुचि बढ़ने लगी। कभी कभी अभ्यास वर्ग लेने का अवसर मिलता था, एक अनोखा संतोष मिलता था और
आज इस मोड़ पे बड़ी श्रद्धा से और बड़े विश्वास से कह सकती हूँ कि कौन से भी विषय का अध्ययन संस्कृत व्याकरण के अध्ययन के बिना अधूरा है। संस्कृत विद्याधनम सर्वधन प्रधानम, और संस्कृत व्याकरण के प्रति जाने का एकमेव सहज और सुलभ मार्ग है पाणिनीय सूत्रक्रम आधारित पौष्पी प्रक्रिया। इस वीडियो के माध्यम से मैं सारे शिक्षकों को, हमारे भारत के सारे शिक्षकों को निवेदन करना चाहती हूँ, प्रार्थना करती हूँ। देखिए, हम शिक्षक तो बहुत मेहनत करते हैं, अपना अपना जो विषय हो बड़े लगाव से पढ़ाते रहते हैं, मगर उसके साथ में अगर हम संस्कृत व्याकरण से जुड़ जाए, पौष्पी प्रक्रिया से संस्कृत व्याकरण का अध्ययन करें, तो जीवन में अध्यापन में ही नहीं, सारे जीवन में एक अनोखा समाधान प्राप्त होगा, एक अनोखी खुशी मिल जाएगी, अनोखा संतोष मिलेगा जो अतुलनीय होगा। इस प्रार्थना से नमः पाणिनये माताजी को दंडवत प्रणाम करके मैं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। नमस्ते, मेरा नाम तृप्ति गदरे है। मैं न्यूयॉर्क से हूँ और पिछले 1.5 साल से मैं ऑनलाइन माध्यम से पाणिनीय व्याकरण के इस वर्ग में जुड़ी हूँ, पढ़ रही हूँ। मैं जाह्नवी दीदी की क्लास में हूँ और ये क्लास ज्वाइन करने से पहले मुझे अष्टाध्यायी के बारे में एक ही बात पता थी कि ये कठिन है, लेकिन जब यहाँ पढ़ना शुरू किया और जिस तरह यहाँ माताजी की पाणिनीय पौष्पी प्रक्रिया के द्वारा व्याकरण पढ़ाया जाता है, उससे अगर हम नियमित रूप से पढ़े, अभ्यास करें, तो बड़ी सरलता से, सहजता से हम ये पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। पहले जब व्याकरण सीखे हैं हम, तब बस रूप याद कराए गए थे हमको, पठती, पठता, पठन्ति। लेकिन जब पठ धातु से पठती ये जब रूप बनता है, तो वो जब रूप सिद्धि हम करते हैं, उसके बीच में अष्टाध्यायी के कौन से सूत्र आते हैं, उनका अर्थ क्या है, उससे रूप में कैसे कैसे परिवर्तन हो जाता है, तो ये जो सारी प्रक्रिया है उससे बहुत आनंद मिलता है और ऐसे लगता है कि हम ये रोज बस पढ़े। और यहाँ हमें पढ़ाने वाले सभी आचार्य और आचार्या, उनकी मैं बहुत बहुत आभारी हूँ और माताजी को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ फॉर मेकिंग पाणिनीय व्याकरण वेरी इजी एंड वेरी इंटरेस्टिंग। धन्यवाद। माताजी को दंडवत प्रणाम। आप सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम शिवा समीसी राहुल है। मैं मुंबई से हूँ। हाल में मैं आयुर्वेद शास्त्र का अभ्यास कर रही हूँ, अर्थात BAMS कर रही हूँ। माताजी की प्रक्रिया सीखना मैंने 1 सितंबर 2024 से प्रारंभ किया। सर्वप्रथम मैं जाह्नवी दीदी की कक्षा में जुड़ी और अभी भी दीदी की कक्षा में अभ्यास कर रही हूँ। शुरू में जब दीदी ने हमें भू से भवती की प्रक्रिया सिखाई थी, तब वह प्रक्रिया मुझे कठिन लगी थी, ऐसा तो मैं नहीं कहूँगी। अपितु मैं अपने शब्दों का चयन बदलकर ये कहना चाहूँगी कि शुरू में प्रक्रिया को पचाने में थोड़ा सा समय लग जाता था, परंतु डटे रहने पर, नियमित अभ्यास करते रहने पर, दीदी के द्वारा दिए गए गृह कार्य को करते रहने पर मैंने पाया कि अब जैसे ऐसा लग रहा हो कि प्रक्रिया स्वयं मुझ में स्थिर हो रही है। और दीदी तो अपनी कक्षा में कहती ही है कि प्रक्रिया स्वयं अपना जादू दिखाएगी, और ये मेरा अनुभव है। कक्षा में जब हम चरक संहिता, अष्टांग हृदय, सुश्रुत संहिता इत्यादि ग्रंथों का अभ्यास करते हैं, तब मैंने पाया कि बाकी बच्चों को वह श्लोक याद करने में जितना समय लगता है, उनकी तुलना में मैं कम समय में याद कर पा रही हूँ। तब मुझे याद आया कि दीदी कौन से जादू की बात कर रही थी। मेरे संस्कृत सीखने का उद्देश्य यह है कि कल्याण की उपलब्धि, क्योंकि पिताजी ने बचपन से सिखाया है कि सर्व प्रकार के हित से कल्याण होता है। माताजी की प्रक्रिया सीखने में मेरा हित है, इसीलिए मैं कहना चाहूँगी
माता के द्वारा माता को माता के लिए, अर्थात माता जी के द्वारा माँ संस्कृत को भारत माँ के लिए। धन्यवाद। Matre Namaha. My name is Arun Kumar. I am residing in Salem, Tamil Nadu, India. I have been studying Paushpi Prakriya for the past 1 year. Paushpi Prakriya means Ashtadhyayi made simple. Mataji's step-by-step approach makes us to understand all Prakriyas very easily and very comprehensively. Dhatu Prakriya, Subhanta Prakriya or Krit Prakriya are explained very easily and very comprehensively. Even a school-going child can understand Sanskrit grammar with this approach. When I studied Dhatu Pata and other Prakriyas using Laghu Kaumudi, I did not understand anything. When I started studying Sanskrit grammar through Paushpi Prakriya, I understood all Prakriyas very easily without any doubt. I think this is an ingenious work. Mataji should be given doctorate for her work, and all universities around the world should adopt her method of teaching Ashtadhyayi as Paushpi Prakriya. Thank you. सर्वेभ्यः नमस्कारः। मेरा नाम प्रवीणा चौहान है। मैं 80 साल की हूँ और 3 साल से माताजी के संरक्षण में पौष्पी प्रक्रिया से तिगंत में लकारों की प्रक्रिया सीख रही हूँ। माताजी के पढ़ाने की विधि बहुत सरल है और जो प्रकरणों में समझाई गई है, जिससे व्याकरण अध्ययन का जो मानसिक भार होता है वो भी नहीं रहता है। हम सब सहपाठी मिलकर अभ्यास करते हैं। सूत्र के शब्दों का उच्चारण को सुधारना हो या प्रकरणों का अभ्यास करवाना हो, ऐसा करने से जरा भी रटना नहीं पड़ता है। जीवन में संस्कृत व्याकरण पढ़ने की चाह थी जो अब पूरी हुई है। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम। धन्यवाद। सर्वेभ्यो नमो नमः। मम नाम सूरज पांडे। पाणिनीय शास्त्रम सहस्रेभ्यः वर्षेभ्यः येन क्रमेण सर्वे पठन्ति पाठयन्ति च। सः क्रमः सर्वथा पाणिनेः दूरस्थक्रमः विद्यते। विश्वस्मिन् पाणिनीय व्याकरण पठनाय या पद्धति प्रचलिता अस्ति सा पद्धति प्रक्रिया पद्धति। अत्र सर्वे प्रामाणिकः ग्रन्थः सिद्धान्तकौमुदी, तत्रैव अग्रे शेखर प्रौढमनोरमा मादयः सन्ति। प्रक्रियाग्रन्थायाम् अध्येतारः अधिकारसूत्राणां मूलतत्त्वेन अनभिज्ञाः भवन्ति। अनेन कारणेन व्याकरणे परिश्रमाः अनन्तरम् अपि ते प्रयोगं तु साधयन्ति, परं ते पाणिनीयविज्ञानेन अनभिज्ञाः या भवन्ति। तत्र विज्ञानं केवलं पाणिनीय पौष्पी प्रक्रिया माध्यमेन ज्ञातुं शक्नुमः। तदर्थम् अहं कृतज्ञोऽस्मि। धन्यवादः। नमस्ते, मैं राधिका चित्तार मुंबई से हूँ। 2024 सितंबर से डॉक्टर श्रीमती पुष्पा दीक्षित महोदया की पाणिनी पौष्पी क्रिया से जुड़ी हुई हूँ। यहाँ पर जुड़ने से पहले श्री चित्रापुर मठ श्रीवल्ली इन्होंने आयोजित किया हुआ गिरवाण प्रतिष्ठा अभ्यासक्रम का अध्ययन मैंने किया था। ये अध्ययन के दौरान धातु के रूप रटने का प्रयास किया था। जब माताजी रचित अष्टाध्यायी सहजबोध और अष्टाध्यायी सूत्रपाठ इनसे परिचय हुआ, तब इन धातुओं के रूपों को सिद्ध करने का ज्ञान मिला। अष्टाध्यायी में उपलब्ध धातुओं के प्रकार, गण, लकार, अंग कार्य, वर्ण कार्य, प्रकृति, प्रत्यय, इन शब्दों का अर्थ और उसका उपयोग समझने लगा। उसी तरह सूत्र संख्या, सूत्र का अर्थ और सूत्र का सही उच्चारण, इसका महत्व जाना। शुरू में ये सब समझने में बहुत कठिनाइयाँ आ रही थी। बहुत सारे प्रश्न मन में उठते थे, परंतु नियमित रूप से अभ्यास करने के बाद ये सारे प्रश्न सुलझते गए। धीरे धीरे समझ में आने लगा और पढ़ने में रुचि बढ़ी और एक आंतरिक आनंद का अनुभव हुआ। इस अनुभव को जारी रखते हुए मैं अष्टाध्यायी के सारे 6 खंडों को जानने का प्रयास करूंगी। और पाणिनी पौष्पी क्रिया सामान्य व्यक्ति तक लाने का जो अमूल्य प्रयास माताजी ने किया, उनको मेरा दंडवत प्रणाम।
और सारे आचार्यों को जिन्होंने हमें ये प्रक्रिया पढ़ाने में जो प्रयत्न किया है उसके लिए उनको धन्यवाद। प्रणाम। नमस्कार, मेरा नाम अनंत विजय दास है। मुझे पहले संस्कृत के बारे में कुछ भी नहीं आता था, तो पूजनीय श्रीमती पुष्पा दीक्षित माता जी के पास मैंने ऑनलाइन माध्यम से संस्कृत भाषा का व्याकरण पढ़ा और वो पढ़ने के बाद मुझे आत्मविश्वास मेरे अंदर जागृत हुआ कि मैं जो अपने शास्त्र संस्कृत में लिखे हैं, अपने सनातन धर्म के जो शास्त्र है, उनका मैं सही से अर्थ संस्कृत में ही समझ पाऊं, ये आत्मविश्वास मेरे में उत्पन्न हुआ और उसी में अभी मैं उनसे पढ़ ही रहा हूं। और जो उनकी 6 किताबें हैं, जब वो मेरी पढ़ के पूरी हो जाएगी तो मुझे एक विश्वास है कि मैं शास्त्रों का अर्थ समझ पाऊंगा। तो इसके लिए मैं माता जी का बहुत ऋणी हूँ कि उन्होंने ऐसे सिखा रहे हैं, ये संस्कृत भाषा के व्याकरण वो सिखा रही हैं और उसके माध्यम से लोगों को संस्कृत सीखना बहुत आसान हो गया है। तो उनका मैं इसलिए बहुत ऋणी हूँ, कृतज्ञ हूँ और उनसे आशीर्वाद की याचना करता हूँ। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम पूजा राजपुरोहित है। मैं राजस्थान के जोधपुर ज़िले की निवासी हूँ और पाणिनीय पौष्पी प्रक्रिया के द्वारा संस्कृत व्याकरण शिविर का आयोजन किया गया था 24 दिसंबर 2024 को। तब मुझे जो है इस शिविर में भाग लेने का मौका मिला था और उस समय से लेकर अब तक मैं लगातार जो है इनके सानिध्य में हूँ और बहुत सारी चीज़ें जो है मुझे सीखने को मिली। मेरे जीवन के अंदर पाणिनीय पौष्पी प्रक्रिया का क्या प्रभाव रहा, उसके बारे में मैं यही बताना चाहूँगी कि मेरा ग्रेजुएशन और एमए मैंने हिंदी में ही किया है, लेकिन संस्कृत से मेरा जुड़ाव इतना अच्छा हो गया और इस पर पकड़ भी काफ़ी अच्छी हो गई है कि 10वीं तक के बच्चों को भी मैं बहुत अच्छे से पढ़ा पाती हूँ। अभी भी जो बोर्ड का जो रिज़ल्ट रहा है उसमें भी जो है अधिकतम मार्क्स बच्चे 98 अंक तक लेकर आए हैं। तो ये इस सब की जो अगर कोई हकदार है तो माता जी ही, पुष्पा दीक्षित जी ही है, क्योंकि उनके द्वारा सिखाई गई जो बारीकियाँ, इतना सरल तरीका, जिसकी वजह से मैं मेरे जीवन में काफ़ी हद तक परिवर्तन ला पाई हूँ और आगे बच्चों के जीवन में भी जो है संस्कृत के प्रति उन्हें प्रेरित कर पाऊँगी। उन्हें जो है संस्कृत को सरल से सरल माध्यम से सीखने के लिए जो है उत्साहित करूंगी, प्रोत्साहित कर पाऊंगी। तो ये सिर्फ और सिर्फ अगर संभव हो पाया है तो माता जी के द्वारा ही संभव हो पाया है। उनकी इस सेवा के लिए मैं उनकी जो है उनको कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहती हूँ। उनकी बहुत ऋणी हूँ और हमेशा यही प्रार्थना करती हूँ कि आपका साथ, आपका आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे और हम भी आपके शिष्य होने के नाते आपके इस कार्य को आगे बढ़ाते रहें और इस संस्कृत की यात्रा को अनवरत चलाते रहें। धन्यवाद। मेरा नाम युवराज दीपक कुमार भोगावकर है। संप्रति मैं पुणे शहर में रहता हूँ। परम पूज्य माता जी श्रीमती पुष्पा दीक्षित जी का मेरे जीवन में अनन्य साधारण ऐसा स्थान है। परम पूज्य माता जी से मैं उनके ऑनलाइन वर्ग में लगभग 2 वर्षों तक पढ़ सका, यह उनकी ही महती कृपा है। माता जी का जो प्रक्रिया क्रम है, जो पौष्पी प्रक्रिया है, वह सही मायने में राजपथ है। राजपथ इसलिए कि जो पथिक है वह उस पथ पर बिना किसी रुकावट सुतराम चल के अपने गंतव्य स्थान को प्राप्त कर सकता है और इसकी अनुभूति मुझे पदे पदे हुई थी जब मैं उनके पास सीख रहा था। आपको एक प्रसंग सुनाता हूँ। तब मेरा अध्ययन छूट गया था और मैं इतर अध्ययन कर रहा था। यह सन 2024 की बात है, जब मैं परम पूज्य माता जी को गुरु पूर्णिमा के दिन वंदन करने के लिए उनको मैंने फ़ोन कॉल किया था। उनका पहला प्रश्न था कि बताओ, ध के परे स होगा तो उसका क्या होगा। यकीन मानिए मुझे कुछ पता नहीं था, पर उनकी ही कृपा थी कि मेरे मुंह से झट से निकल गया षढ़ो कस्सी। तो वो सुन के प्रसन्न हुई और बोली कि तुम्हारी अच्छी प्रगति हो रही है, तुम्हारा कल्याण होगा, और आशीर्वाद देकर उन्होंने फ़ोन रख दिया। हम सभी छात्रों के तरफ से मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि
यापायत् सदैवास्मान् पाणिनेः सुमहत्पयः तां वन्दे पंडितां पुष्पां शारदायाः स्वरूपिणी। नमस्कार। सभी को नमो नमः। मेरा नाम कनक मिश्रा है। मैं पिछले 4 वर्षों से पाणिनीय शोध संस्थान में संस्कृत व्याकरण का अध्ययन कर रही हूँ। मैं पाणिनीय पुष्पी प्रक्रिया के द्वारा हम ऐसे संस्कृत पढ़ते हैं जैसे हम कोई खेल खेल रहे हो, और ऐसे ही मैं माता जी के आशीष से मैं संस्कृत व्याकरण का अध्ययन कर रही हूँ। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। मेरा नाम जयश्री भट्ट है। मैं मुंबई घाटकोपर से हूँ। मैं सबसे पहले तो पाणिनि जी भगवान को और माता जी को और सबसे मेरे सिखाने वाले जो गुरुजन है अरुणा माता जी, खोड़ीदास जी, माधुरी दीदी और अनमोल भैया, इन सभी को मैं माता जी के सहित सभी को मैं सत कोटि प्रणाम करती हूँ। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं वहाँ पर आपके प्रोग्राम में आना चाहती थी, परंतु मैं शरीर से लाचार हूँ, टोटली हैंडीकैप्ड हूँ। और मैंने ये मार्च महीने से ये ज्वाइन किया है क्लासेस। और मैं गीता कंठस्थ किया है मैंने 700 श्लोक का कोविद पास किया है, गीता सोपानम 2 किया है, चंडी पाठ मुझे कंठस्थ है। परंतु जब यह लिंक पर मैं ज्वाइन हुई तब मुझे जानने में आया कि ग्रामर इतना बहुत गहन है एकदम। तभी मुझे ये सब जानने में आया। तो जब मुझे पता चला कि पाणिनि जी भगवान के सूत्र पर माता जी ने इतने सूक्ष्म से सूक्ष्म बारीक तरीके से हम लोग को सिखाने के लिए इतना रात दिन मेहनत किया है, उनके लिए मैं माता जी को धन्यवाद कहना चाहती हूँ। और माता जी के चरणों में मेरा सत कोटि प्रणाम है। माता जी आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं यह शिक्षा प्राप्त कर सकूं। बस मुझे तो दूसरा और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि मेरा जीवन धन्य हो गया, ऐसा मैं समझती हूँ। पूज्या मात्रोश्चरणयोः प्रणमामि। मम नाम शिवकांत तिवारी। अहं मथुरा वृंदावने निवसामि। अहं मातुः पौष्पी प्रक्रियया अष्टाध्यायीं 22-2000 वर्षम् ईस्वीयतः पाणिनीय शोध संस्थान बिलासपुर ऑनलाइन माध्यमेन पठामि। मातुः पौष्पी प्रक्रिया पाणिनि व्याकरण शास्त्रस्य अत्युत्तमः प्रक्रिया बहु सहजमपि च अस्ति। इयं प्रक्रिया द्वारा बहु लाभान्वितम् अस्मि। अहं कामये हे प्रभो मातृभ्यः दीर्घायुरारोग्यतां प्रदद्यात्। नमो नमः। मेरा नाम उमा नातू और मैं पुणे महाराष्ट्र से हूँ। पिछले 2 साल से पूजनीय माताजी डॉक्टर पुष्पा जी दीक्षित महोदया के पास मैं पाणिनीय पौष्पी प्रक्रिया पढ़ रही हूँ। अष्टाध्यायी सूत्रों के अद्भुत विश्व में माताजी ने हमारा प्रवेश करा दिया। उनका हर एक व्याख्यान बहुत ही सुगम और सरल रहा, और हर दिन माताजी हमें प्रेरणा देते रहे ताकि हम दिन में 3-4 घंटे अध्ययन करें। नियमित रूप से 2 साल माताजी के द्वारा आयोजित वर्ग में अध्ययन करने के बाद अब मैं संस्कृत का कोई भी ग्रंथ पढ़ती हूँ तो उसमें जो वाक्य होते हैं उनके अर्थ तो जानना होता ही है, लेकिन हर एक शब्द का व्याकरण क्या है, वो कैसा बना, इसकी मुझे तीव्र जिज्ञासा होती है। और जब वो शब्द सुलझता है तो मैं बहुत आनंद पाती हूँ। इसके लिए माँ सरस्वती जैसे पूजनीय माता जी को मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहती हूँ तथा उनको कोटि कोटि
प्रणाम करती हूँ। और इसके साथ मैं एक वचन भी देती हूँ उन्हें। मेरी नातिन अभी 4 साल की ही है, लेकिन आगे जाके मैं उसे पाणिनीय पौष्पी प्रक्रिया का परिचय अवश्य करा दूंगी। प्रणाम माता जी। मैं ओम प्रकाश जबलपुर मध्य प्रदेश से मैं पौष्पी प्रक्रिया के अनुसार 6 माह से अष्टाध्यायी सहज बोध का अभ्यास कर रहा हूँ, जिसमें मैं अभी सार्वधातुक प्रक्रिया सीख रहा हूँ और मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। और मैं समझता हूँ कि मैं इस प्रक्रिया के अनुसार व्याकरण को मैं सीख पाऊँगा और अपने जीवन में उसको धारण कर पाऊँ और ग्रंथों को समझने में यह बहुत ही हेल्प होगा। और इस प्रक्रिया के अनुसार मैं समझता हूँ पूरे विश्व का कल्याण होगा और वो कम समय में व्याकरण को सीख पाएंगे। इसके लिए माता पुष्पा जी दीक्षित जी को हृदय से नमन करता हूँ और प्रणाम करता हूँ कि उन्होंने इतनी सहज प्रक्रिया हम लोगों के सामने प्रस्तुत किया है। धन्यवाद। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। श्री भवानी शंकराय नमः। श्री मात्रे नमः। प्रिय मातः प्रणमामि। भूयांसि नमांसि अस्मिन् शुभावसरे। मम नाम वैशाली कोप्पिकर, बेंगळूरु निवासिनी, तत्र भवत्याः छात्रा। भवत्या चाल्यमानायां कक्ष्यायां गतवर्षादारभ्य पठन्ती अस्मि, यत् मम अहोभाग्यम्। असितगिरिसमं स्यात् कज्जलं सिन्धुपात्रं, सुरतरुवरशाखा लेखनी पत्रमुर्वी। लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालं, तदपि तव गुणानां मातः पारन्न याति। यद्यपि एषा ईशस्तुतिः वस्तुतः, तथापि मम कृते तु भवत्याः स्तुतिरेव इयम्। यतः भवत्या अनुकरणीयाः अंशाः न केवलं व्याकरणसम्बद्धाः, अपि तु व्यवहारे अपि औचित्यम् उपात्ताः सन्ति। मुहुर्मुहुः प्रणमामि मातः। भवत्याः पाणिनीय व्याकरण प्रचार कार्ये यदा कदा वा निमित्तरूपेण भवेयम् इति इच्छां प्रदर्शयन्ती अत्रैव विरमामि अहम्। नमांसि मातः। सर्वेभ्यो नमो नमः। प्रणाम माताजी। मैं नीतू बुरट ईरोड तमिलनाडु से बोल रही हूँ। मुझे माताजी की पद्धति जो है बहुत ही सरल लग रही है। मैं संस्कृत करीबन 3-4 साल से पढ़ रही हूँ और संस्कृत जब पढ़ते हैं तो ऐसा लगता ही नहीं है कि हम संस्कृत पढ़ रहे हैं, क्योंकि माताजी की जो पद्धति है वो सिंपली जैसे हम मैथ्स के फॉर्मूले वगैरह करते हैं ऐसे स्टेप बाय स्टेप है, जिसे हम करने पे और आगे हमारा इंटरेस्ट रखता है कि इसके नेक्स्ट क्या स्टेप है, इसके नेक्स्ट क्या स्टेप है करके। और स्टेप पूरा कंप्लीट होने के बाद में जैसे ही हमें वो कंक्लूशन मिलता है तो वो बहुत ही अद्भुत आनंद होता है। सो थैंक्स टू यू माताजी, जो आपने इतनी सरल पद्धति हमारे लिए की। मैं संस्कृत पढ़ती हूँ तो मुझे ऐसे लगता ही नहीं है कि मैं संस्कृत पढ़ रही हूँ, ऐसे लगता है कि मैं मैथ्स पढ़ रही हूँ। थैंक यू सो मच। धन्यवाद माताजी। Namaste Mataji. I am Hariharan Subramanian from Coimbatore. My pranams to Sri Srinivasa Varakedi Mahodaya, Acharya Vishnukant Pandey ji, Acharya Vrajbhushan Ojha Mahodaya,
and best wishes for the function and for the award. I started learning Sanskritam from 2020 COVID days, but since 2024 I have been learning Paushpi Prakriya through Anil ji and Janvi Didi. Our Koti pranams to Mata ji for making Sanskrit Vyakaranam learning so easy through Paushpi Prakriya, and this has made many Sanskrit enthusiasts to come forward to learn Sanskritam Vyakaranam, because Mata ji आपने इतना सरल बना दिया for this learning Vyakaranam. And like our Janvi Didi recites Sadasiva Samarambham Tatha Panini Madhyamam Dikshita Putpa Paryantam. This is only possible because nobody else is going to take it forward, and then nobody can come up with such a easiest method to learn Vyakaranam, and this is only you are the ultimate in making Samskrita learning so easy, and our Koti thanks to you for making our life so meaningful and for persuading us to learn Vyakaranam. And we really enjoy going through your videos, and right Sakshat we are learning from you through a video, and we are really thankful to you. Once again my pranams to all, and also for the function. धन्यवाद. वंदनीय माताजी के पावन चरणों में कृतज्ञ भाव से नमन करती हुई मैं नंदिनी फ्रॉम यूएसए। साइंस की छात्रा रहते हुए स्कूल कॉलेज में कभी संस्कृत की पढ़ाई के बारे में सोचा नहीं था। संस्कृत संस्कारों की संस्कृति की जननी है और उसे पढ़ना चाहिए, यह समझ आते आते जिंदगी की उत्तरावस्था में पहुंच गई थी। पिछले 4 सालों से संस्कृत की पढ़ाई शुरू की। लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ने की कोशिश की। डर लगने लगा कि उम्र भी बीतती जा रही है और समय भी, लेकिन हमें अष्टाध्यायी पढ़नी है। जिससे भी पूछते थे कहते थे अष्टाध्यायी तो बहुत कठिन है, और हमने मान भी लिया था। लेकिन भाग्य का उदय हुआ और पता चला कि अष्टाध्यायी सहज बोध की कक्षाएं चल रही है। पिछले 2.5 महीने से उनसे जुड़ गए। माहेश्वर सूत्रों को प्रणाम करते हुए यात्रा की शुरुआत की। संज्ञा प्रकरण, संधि प्रकरण, सार्वधातुक के प्रकरणों में जैसे जैसे आगे बढ़े तो करीबन 2.5 महीने के कम समय में हमने 100 से ज्यादा सूत्र बहुत सरलता से पढ़ लिए, क्योंकि वंदनीय माताजी ने यह प्रक्रिया इतनी सरल बनाकर संसार के सामने रखी है कि कोई भी पढ़ सकता है। कक्षा में 15 साल की बच्ची से लेकर 70 साल की माताएं महोदय एक साथ अभ्यास कर सकते हैं। हमें महसूस होने लगा है कि हम अष्टाध्यायी जरूर पढ़ पाएंगे, क्योंकि ये प्रक्रिया ही इतनी सरल है। मानो गागर में सागर भर के समान संसार के लिए रख दिया है। हम माताजी के सदैव ऋणी रहेंगे। धन्यवाद माताजी। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। मेरा नाम भवानी प्रसाद है। मैं 77 वर्ष का हूँ और हैदराबाद का निवासी हूँ। 2 वर्षों से माताजी का, पुष्पा दीक्षित जी का पौष्पिक प्रक्रिया से अष्टाध्यायी सूत्रों से संस्कृत सीख रहा हूँ। मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि पौष्पिक प्रक्रिया बहुत सरल और सहज और वैज्ञानिक है, उत्तमोत्तम है। अभी तक मैं जो भी सीखा हूँ, ऐसा लगता है कि भगवद गीता का अध्ययन में एक क्रिया शब्दों का पहचान में आ रहा है। इसी तरह मुझे आशा है कि रामायण, महाभारत और भागवत
महापुराण आदि ग्रंथों को स्वयं पढ़ने और समझने में दक्षता प्राप्त होने में कोई संशय नहीं लगता। जब मैं पौष्टिक ग्रंथों पढ़ने लगा हूँ, मुझे ऐसा लगा कि इन ग्रंथों में इतना सूक्ष्म व्याकरण अंशों को सहज और सरलता से प्रस्तुत करने में कितना परिश्रम लगा माता जी को, ये तो मुझे तो ऐसा लगता है ये अकल्पनीय, अतुलनीय और मेरा मस्तिष्क से बाहर है। मैं पूर्ण रूप से माता जी का ऋणी हूँ और कृतज्ञता पूर्वक नमन करता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ उन्हें लंबी आयु दे और इतना निस्वार्थ रूप से संस्कृत का ये प्रचार कर रहे हैं, ये तो मुझे बहुत आश्चर्य की बात लगा। और ऐसे उम्र में भी इतना परिश्रम करने, गुरुकुल चलाना और महासंकल्प से पूरा देश में प्रचार करने का जो ये लिया है, ये तो बहुत ही प्रशंसनीय और बहुत ही आश्चर्य विस्मय की बात है। भगवान से प्रार्थना करता हूँ उन्हें लंबी आयु दे और हमें भी जो भी इनका सहयोग सहकार करना है वो क्षमता हमें भी दे। हरि ही ओम। नमः पाणिनि। मेरा नाम खोड़ीदास सुजीत राय है। मैं नवसारी का रहने वाला हूँ और मैंने MBA किया है। पढ़ाई में कभी संस्कृत मेरा विषय रहा नहीं है, लेकिन जब भी कोई अध्यात्म का ग्रंथ पढ़ता हूँ तो एक खालीपन रहता है संस्कृत सीखने का। उसके कारण मैं संस्कृत सीखने के प्रयास के कारण बहुत जगह पे मैं ढूंढ रहा था ऐसी कोई लिंक मिले, ऐसा कोई पढ़ाई करने वाला मिले। तो ऑनलाइन एक लिंक मिली जहाँ पे जानवी दीदी पढ़ा रही थी माताजी पुष्पा दीक्षित जी की प्रक्रिया के अनुसार। वो एक वर्ग लेने जा रहे थे जो मेरा पहला वर्ग था और वो मैंने शुरू किया। तो 3-4 महीने में मुझे पूरी प्रक्रिया धीरे धीरे शब्द सिद्धि की समझ में आने लगी। तो और जुड़ाव संस्कृत के प्रति मेरा होने लगा और संस्कृत के प्रति रुचि और बढ़ने लगी। तो जो मेरे जैसा सामान्य व्यक्ति कभी संस्कृत नहीं सीखा, वो आज अष्टाध्यायी का पारायण कर रहा है, उसके जो भी सूत्र है उसको कंठस्थ कर रहा है, वो मेरे लिए गर्व की बात है। उसका एकमात्र कारण माताजी दीक्षित जी, पुष्पा दीक्षित जी की जो परंपरा है वो है, उसकी सरल बनाई गई ये प्रक्रिया है और उसके परंपरा में पढ़ा रहे ये सब गुरुजन लोग हैं। क्योंकि उन लोगों ने ही ये प्रक्रिया के माध्यम से हमको समझाया, तो हम भी धीरे धीरे समझ पाए। जितना समझ पा रहे हैं उतना लोगों को भी समझाने का प्रयास कर रहे हैं और जितना समझ पाएंगे उतना आगे और प्रयास करते रहेंगे। तो अभी भी ये पढ़ाई चालू है मेरी, 1 साल हुआ है। तो उसके लिए मैं माताजी पुष्पा दीक्षित जी की प्रक्रिया को, माताजी पुष्पा दीक्षित जी को, उनके गुरु परंपरा में पढ़ा रहे सभी गुरुजन, खास और अनिल आचार्य जी को, और जो दीदी है जिसने मुझे सिखाया वो जानवी दीदी, उनको भी मैं प्रणाम करता हूँ क्योंकि उनके कारण ही ये सब संभव बना है। माताजी की प्रक्रिया, गुरुजन और माताजी के खुद आशीर्वाद से ये संभव हुआ है, तो उनको मैं प्रणाम करता हूँ। नमः पाणिनि। मेरा नाम शशि चंद्र भूषण है। मैं बिहार का रहने वाला हूँ। मैं माताजी के पौष्पी प्रक्रिया के माध्यम से संस्कृत व्याकरण सीख रहा हूँ। पौष्पी प्रक्रिया के कारण से व्याकरण पढ़ना समझना बहुत ही सुलभ और सुगम हो गया है। मैं नहीं समझ पा रहा था कि इतना आसान होगा संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी के माध्यम से पढ़ना, जितना माताजी के पौष्पी प्रक्रिया के कारण से आसान हो गया है। मैं इसके लिए माताजी का बहुत आभारी हूँ, जिसके कारण से कि मैं संस्कृत व्याकरण पढ़ पा रहा हूँ और समझ पा रहा हूँ। धन्यवाद। हरि ओम। अहं शारदा चेन्नईतः मातुः कक्षायां 2020-तमवर्षे योजितवती। तदनन्तरं 5 वर्षादभ्यन्तरे यत् अहं
एकादशवर्षात् पठितुं न शक्तवती, तत्सर्वं सम्यक् ज्ञातवती। मातुः पौष्पीप्रक्रिया इति पद्धतिः बहु सम्यक् अस्ति। इदानीम् अहम् इच्छामि तमिळ् माध्यमेन तमिळ्नाडुराज्ये पाठयामि, तत् प्रयत्नं करोमि इति। धन्यवादः। अहं विष्णुचित्तः कर्नाटकतः अस्मि। मम 7मे वयसि आरब्धः अस्य पौष्पीपद्धतेः आकर्षणं। मैसूरुमध्ये कश्चन पाठशालायां मम पिता पाठयति। माताजी तत्रैकवारम् आगतवती पाठितुं। तदा मत्कृतेपि किञ्चित् पाठयति स्म। ततः आरभ्य इतोपि प्रचलन् वर्तते मम अध्ययनं। संस्कृतव्याकरणम् अतीव कठिनमस्ति इति प्रसिद्धः, किन्तु मत्कृते कदापि तादृशः अनुभवः न अभवत्। अस्य कारणं तु आचार्यायाः पाठस्य वैशिष्ट्यम् इत्युक्त्वा विरमामि। रतिसहस्रपूर्वकं नमांसि। नमो नमः। मेरा नाम भव्या अग्रवाल है। मैं जोधपुर से हूँ। मैं पौष्पी प्रक्रिया से संस्कृत व्याकरण सीख रही हूँ। मैं विद्यालय में भी संस्कृत का अध्ययन करती हूँ और पौष्पी प्रक्रिया बहुत ही सरल विधि है संस्कृत व्याकरण सीखने की। धन्यवाद। नमो नमः। मेरा नाम भावांश अग्रवाल है। मैं पिछले कुछ समय से पौष्पी प्रक्रिया द्वारा संस्कृत पढ़ रहा हूँ। नमो नमः। मेरा नाम हरीश अग्रवाल, मैं जोधपुर से हूँ और 2023 से मैंने पौष्पी प्रक्रिया से संस्कृत पढ़ना, संस्कृत व्याकरण सीखना प्रारंभ किया है। मुझे लगता है यह प्रक्रिया सरल विधि है संस्कृत व्याकरण सीखने की। सदाशिवसमारम्भां तथा पाणिनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परा। नमः पाणिनि। मेरा नाम ओम अवधूत पणशीकर। मैं महाराष्ट्र में ठाणे ज़िले में रहने वाला हूँ। अभी वर्तमान में जे हॉस्पिटल में ग्रैंड गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में MBBS डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा हूँ। 10वीं के अवकाश में माताजी के सान्निध्य में रहकर व्याकरण शास्त्र का अध्ययन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। माताजी से पढ़ना यानी साक्षात भगवती सरस्वती के सन्निध रहने जैसा ही अनुभव होता है। अपने वात्सल्यपूर्ण पद्धति से माताजी ने जो ज्ञान गंगा हमारे ऊपर बहाई, उसमें से हम जितना हमारी बुद्धि और क्षमता के अनुसार ग्रहण कर सके उतना ग्रहण करने का हमने प्रयास किया। माताजी के द्वारा जो पौष्पी प्रक्रिया का अनुसंधान किया गया है और पाणिनीय व्याकरण के अध्ययन हेतु अत्यंत सुलभ और आ कुमारम यशो यस्य, ऐसे जैसे पाणिनि भगवान के विषय में कहा गया है, वैसे ही माताजी की इस प्रक्रिया के द्वारा अत्यंत अल्प आयु का बालक भी, जिसने अभी अभी व्याकरण शास्त्र का अध्ययन करना प्रारंभ किया है, ऐसा बालक भी संपूर्ण अष्टाध्यायी का ग्रहण कर सकता है। केवल रटन नहीं अपितु ग्रहण करके अपने व्याकरण शास्त्र के उपयोग के द्वारा शब्दों की सिद्धि भी कर सकता है। ये हमने हमारी आँखों से देखा और हम अत्यंत प्रभावित हुए। भगवती सरस्वती जी की, भगवान पाणिनि जी की और माता जी की हमारे ऊपर कृपा है कि हमें उनके सन्निध आकर पठन करने का अनुभव मिला। इस विशेष अवसर पर हम हमारी पढ़ाई के कारण वहाँ पर उपस्थित तो नहीं रह पाए, पर हम माता जी के चरणों में हमारे कोटि कोटि प्रणाम अर्पित करते हैं। नमः पाणिनि। सदाशिवसमारम्भां तथा पाणिनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। माता जी के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। जय श्री कृष्ण। मेरा नाम वर्षा ओझा है। मैं जोधपुर राजस्थान की रहने वाली हूँ। मैं गृहिणी हूँ और संस्कृत में रुचि है मेरी, संस्कृत व्याकरण पढ़ने में मेरी रुचि है। मैं लगभग 1 वर्ष से माता जी की प्रक्रिया से संस्कृत व्याकरण पढ़ रही हूँ। माता जी की प्रक्रिया पढ़ते हुए मुझे लगा कि सूत्रों का अर्थ जो है वो कभी रटना नहीं पड़े और हम आनंदपूर्वक संस्कृत पढ़ सके, ऐसा भी हो सकता है। तो ये एक मेरा अनुभव रहा कि पाणिनीय क्रम से इस प्रकार हम संस्कृत व्याकरण को पढ़कर
आनंदपूर्वक जैसे यात्रा करते हैं वैसे हम इस व्याकरण की यात्रा को संपूर्ण कर सकते हैं। इसमें माताजी ने जो पूरा विज्ञान हमें एक साथ समझाया है, उत्सर्ग अपवाद विधि से कि भाई उत्सर्ग विधि ये है, पहले सामान्य सूत्र पढ़ लीजिए, उसके बाद में अपवाद सूत्रों को पढ़ लीजिए, तो पूरा विज्ञान एक साथ समझ में आ जाता है। चाहे प्रत्यय हो, सार्वधातुक प्रक्रिया जैसे हमने पढ़ी तो पित्त अपित्त का विभाग देखा, तो इस प्रकार से पूरा का पूरा हमें विज्ञान समझ में आ जाता है। अर्धधातुक में जाएंगे तो यित णित कित गित और इनसे भिन्न शेष सामान्य, तो इस प्रकार से पूरा का पूरा विज्ञान एक साथ समझ में आ जाता है। तो उत्सर्ग अपवाद विधि से हम जब व्याकरण पढ़ते हैं तो ये जो प्रक्रिया है, इसी प्रक्रिया में यह विशेषता है, माताजी ने हमारे लिए प्रक्रिया एकदम सरल कर ली है। मैं जो 1 वर्ष से व्याकरण पढ़ रही हूँ, अनिल भैया और जानवी जी के वर्ग में मैं नियमित अध्येता हूँ। वहाँ पर हमारे यहाँ छोटे बालक से लेकर वृद्ध भी हैं और युवा भी हैं, बालक भी हैं, एक साथ हम सभी पढ़ते हैं और आनंदपूर्वक सहज समझ में आए जैसा हमारा अध्ययन चल रहा है। पूरा विज्ञान एक साथ स्पष्ट हो जाता है। अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि माताजी की प्रक्रिया से व्याकरण पढ़कर मुझे बहुत आनंद आ रहा है और मैं इसे आजीवन रखूँगी संस्कृत अध्ययन को। माताजी का स्वयं जीवन देखें तो पूरा का पूरा जीवन उनका संस्कृत को समर्पित है। तो माताजी से प्रार्थना है कि वे हम सभी को आशीष करें कि हम भी उनके जैसे राष्ट्र को समर्पित बने, धर्म के प्रति समर्पित रहें। माताजी के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। जय श्री कृष्ण।